Okay, so let us start. So good morning, everyone. Acha. So these many people are Morning. taking this class, right? It's confirmed, ना? कि तुम सब लोग ये पेमेंट Yes, डिजाइन ले ma'am. रहे हो तो विश्वजन यहाँ पे प्रेजेंट है और इन द शायोग सरकार. See, I will be teaching pavement design, okay? And this is an elective subject. You can choose subject as per your choice, okay? Pavement with pavement. अच्छा श्रुति सिर्फ तो म्यूट करो तो. With pavement design, there will be another subject which is your tall building, okay? Which will be taught by your, I think, Sumit sir, okay? Sumit Kanjilal sir. So let us start. Is the screen visible? Is it visible, right? Yes. Yes. So today's first, this is our third lecture, okay, which is the factors affecting pavement design. In our previous lecture, what we did, what are the syllabus, what is the syllabus of this subject, what we will be learning in this subject, okay, what are the different modules, and after that we started two lectures, which we started one lecture which was your introduction to the pavement layer. Okay, what is the pavement, what do you mean by the pavement, and what are the components basically, what is these component layers, what are the layers of this pavement is known as. Say for example, first is your wearing surface course. Okay, second was your, what is the name of the second course from the top, from the first it was your wearing course or surface course, then second course was your base course, okay, then it was sub base, then subgrade. So we have described what are the individual layers, what are their functions, and what are the materials which are required to form these layers. Okay, so this has been described in our previous lecture. Now today's lecture is what are the factors affecting pavement design. Before going into the details, we must have an idea about the different factors that must be considered before designing the pavement structure. Okay, so here designing of the pavement structure means what? Designing the total height of the pavement, or we can say total depth. See, from this height to this level, that is called the depth of the pavement. And also the, what is the depth of individual layer. Okay, so we have to design these things, but before that we must see what are the factors that will be affecting this thickness of the pavement. Okay, so first it can be, these are the topics that will be covered. First, we will learn what are the factors affecting the pavement design. Then, under this topic, there will be one topic which is terminology, which is called axle configuration. We will be learning about this also. Then comes the standard axle load, contact area, contact pressure, rigidity factor. What do you mean by these terms? We will be learning. Okay. Generally, MCQs will be coming from this chapter. ठीक है, यहाँ से बेसिकली एमसीक्यूज में तुम लोग का मिल सकता है, और एक दो अगर न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स का अगर आता है तो यहाँ से भी दे सकता है. ओके, तो एंड द अदर टॉपिक्स आर व्हाट, ESAL एंड ELF. दिस टू टर्म्स, पहले तो ये फुल फॉर्म क्या है वो देखेंगे, देन हाउ वी विल कैलकुलेट दिस थिंग्स. ओके, तो ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे विथ सम एग्जांपल्स. सो Acha, can you please tell me what are the different factors that will be affecting the pavement design? क्या क्या factors हमको consider करना चाहिए? Anyone? Hmm. First of मैम all, tell डेंसिटी ऑफ me व्हीकल्स भी देखना पड़ेगा. density of vehicles. Okay. First Hmm. thing is what? We are designing pavement for which kind of load? What kind of load will be? vehicle load. Yes, vehicle load. Okay, that is your traffic load. Okay, so first consider will be your traffic and loading. Under this topic, these are the different factors that we must
हैव एन आइडिया। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग पेवमेंट डिजाइन करने जाएंगे देयर विल बी सेवरल टर्म्स, ये सब टर्म्स आएगा, ठीक है। इफ यू नो, इफ तुम्हारा इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा पहले से, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व, राइट। तो डिजाइन करने में तो देखना ये सब कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, व्हील लोड, रिपीटेशन ऑफ लोड, टायर प्रेशर, इट विल अफेक्ट द ट्रैफिक लोडिंग, सॉरी, इट विल अफेक्ट द पेवमेंट डिजाइन। क्यों? बिकॉज पेवमेंट जनरली हम क्या बोले थे, पेवमेंट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, राइट, ठीक है। एक लेयर होता है, दूसरा दिस इज सपोज टॉप मोस्ट लेयर, फिर तुम्हारा ऐसे करते करते जाएगा, ओके। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक व्हील लोड आ रहा है, ओके। देन दिस व्हील लोड हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे नीचे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट। सो दिस आर द प्रेशर, इसके यहाँ पे इंडिविजुअल लेयर में प्रेशर्स आ रहा है, ओके। सो दिस प्रेशर बेसिकली कहाँ से आ रहा है बोलो, इसके ऊपर प्रेशर कहाँ से आ रहा है, ये डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है। इसके ऊपर प्रेशर कहाँ से आ रहा है, इस चीज से From आ the रहा है ना, vehicle. फ्रॉम द व्हीकल, Vehicle से to us. यस, यहाँ से आ रहा है, राइट, ये लोड से आ रहा है, तो इससे इंडिविजुअल में लेयर्स में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू हैव द आइडिया अबाउट दिस, ये जो लोड है इसके ऊपर हमको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का लोडिंग आ रहा है, ठीक है, कैसा टाइप का लोडिंग आ रहा है, कितना लोडिंग आ रहा है, ऑल दिस थिंग मस्ट बी कंसीडर, दिस इज व्हाट, दिस इज योर व्हील लोड, राइट। सो व्हील लोड को हमको पहले कंसीडर करना चाहिए, ओके, मतलब कि पी, कैपिटल पी को कंसीडर करना चाहिए। अब ये कैपिटल पी कंसीडर करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, कि कैसा टाइप का लोडिंग है, ठीक है, एंड द टाइप ऑफ द लोडिंग डिपेंड्स अपॉन द एक्सल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक्सल लोड और एक्सल कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली ये क्या है, व्हील लोड है, लेकिन व्हील से पहले कहाँ पे आता है, व्हीकल का लोड व्हील से पहले कहाँ पे आता है, डायरेक्ट तो व्हील में नहीं जाएगा, पहले जाएगा एक्सल में, देन फ्रॉम एक्सल टू द व्हील, देन फ्रॉम व्हील टू द अंडरग्राउंड लेयर, ठीक है। तो पहले हमको देखना है कि एक्सल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर कितना व्हील लोड है, ऑल्सो ये जो कितनी बार रिपीटेटिव वे में आ रहा है, मतलब कितनी बार ये रिपीटेटिव वे में आएगा, कितनी बार रिपीटेटिव वे में सेम टाइप का लोड या डिफरेंट टाइप का लोड कितना बार रिपीटेटिव वे में, ये थ्रू आउट इट्स डिजाइन लाइफ, डिजाइन लाइफ मतलब है फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स के लिए हम लोगों ने ये डिजाइन किया है, ठीक है। तो 20 ईयर्स के लिए कितना रिपीटेटिव वे में ये पी लोड आएगा, इसके ऊपर, उसके ऊपर भी तुम्हारा ये थिकनेस भी डिपेंड करता है, okay. This individual thickness as well as the total thickness depend upon this factor also, clear। and also the tire pressure, ये जो टायर है इसके ऊपर कैसा प्रेशर हो रहा है, okay। so these are the traffic and loading factors that will be considered before pavement designing, okay। is it clear? हाँ मैम। एबार नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये तो ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक को छोड़ के और क्या हो सकता है, और मैम क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे आता है देखो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, कि हम कैसा टाइप का मटेरियल्स यूज कर रहे हैं। एज आई सेड इंडिविजुअल लेयर क्या सेम टाइप का मटेरियल से बनता है, नहीं, कोई कोई तुम्हारा सीमेंट से बन रहा है, कोई कोई तुम्हारा बिटुमिनस कंक्रीट से बन रहा है, कोई लेयर, ठीक है, कोई लेयर तुम्हारा क्या हो रहा है, WBM से बन रहा है, ओके, वाटर बॉन्ड मैकाडम यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का साइज वेरी कर रहा है, ओके। सो their characteristics, their properties will also be varying, मतलब एक ही प्रॉपर्टी का हम मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं फॉर ऑल लेयर्स, ठीक है। जितना जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना हमको अच्छा क्वालिटी का मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मेनली क्या आता है, ड्यूरिंग डिजाइन देखना ये टर्म बार बार ई वैल्यूज रहता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द लेयर्स, ठीक है। फिर पोजीशंस रेशियो, ये म्यू का भी हमको चाहिए, ठीक है, मेनली सीमेंट कंक्रीट में ये सब रहता है ये वाला, ठीक है। और एक ये मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के वाला जो है तुम्हारा उसमें आता है, ठीक है, रिजिड पेवमेंट में बेसिकली ई आ जाता है तुम्हारा किसमें, ये ईच इंडिविजुअल लेयर्स का मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू
हैव एन आइडिया और वी मस्ट कलेक्ट, ठीक है, हमको इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्ट करके रखना चाहिए पहले से कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या मटेरियल प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग. ओके. सेकेंड इज योर स्ट्रक्चरल मॉडल. ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडल मतलब कि हम किस वे में डिजाइन कर रहे हैं. ओके, हाउ वी आर डिजाइनिंग. एक ही डिजाइन नहीं होता, देर आर सेवरल मेथड्स, राइट. तो कौन से वे में हम लोग डिजाइन करते हैं उसके ऊपर भी तुम्हारा देखना. एक मेथड से अगर डिजाइन करेंगे तो दूसरा थिकनेस आता है. ठीक है, इफ वी आर यूजिंग अनदर काइंड ऑफ मेथड, एनालिटिकल या एम्पिरिकल मेथड यूज कर रहे तो शायद उसका एच वैल्यू जो हम पहले मेथड से किए थे उससे थोड़ा कम बेसी ज्यादा भी हो सकता है. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल्स दैट वी आर यूजिंग. ठीक है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है. एंड लास्टली इज व्हाट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइल डिजाइनिंग पेवमेंट डिजाइन. ठीक है, टेम्परेचर कहाँ पे मेनली होता है, बिकॉज ये जो हो रहा है ना फ्रीजिंग थ्रॉइंग जो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांसन हो जाता है, उसकी वजह से फेलियर्स जल्दी हो जाते हैं, क्रैक्स जल्दी डेवलप होता है. ओके, सो वी हैव टू कंसीडर दिस थिंग्स आल्सो. ओके, क्लियर? ম্যাম এখানে একটা একটা बोलो बोलो হ্যালো बोलो. ম্যাম একটা জিনিস মানে আমাদের কনসিডারেশন করতে হবে না যে মানে টাইপ অফ রোড. टाइप ऑफ रोड. হ্যাঁ हेलो. हाँ, ये तो इसके ऊपर হ্যাঁ ही হ্যাঁ तो টাইপ मेट्रो অফ রোড. कैरेक्टरिस्टिक्स, मेट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोले ना हम. ठीक है, मतलब कहाँ पे तुम्हारा म्यू यूज करना है, कहाँ पे के यूज करना है. के इज बेसिकली यूज फॉर रिजिड पेवमेंट. ओके, না না ওটা বলছি না, সাপোজ ধরুন যেমন টাইপ অফ রোড বলতে আমি এটা বলতে চাইছি এখানে, যেমন ধরুন আপনার ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে বা यस यस यस. সাবওয়ে हाँ হচ্ছে, हाँ हाँ. ভিলেজ রোড নাকি কোন ধরনের, ওটার উপর ডিপেন্ড করবে. প্লাস হিস্ট্রি মানে হিস্ট্রি কিরকম আছে, গ্রোথ কিরকম ग्रोथ, আছে ওই রোডের, ट्रैफिक ग्रोथ रेट, ये ওটার सब. উপর তো ডিপেন্ড করবে. हाँ 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 हाँ, निश्चय निश्चय. यस, ऑल दिस थिंग आल्सो मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ओके, तो ये सब बेसिकली तुम्हारा किस में आ जाएगा, देखो कि कितना ट्रैफिक लोड जा सकता है. ओके, ट्रैफिक के इसके ऊपर, दैट इज आल्सो गुड पॉइंट, वो सब भी हमको ম্যাম कंसीडर তাহলে करना पड़ेगा আমাদের मेनली इन. সর্ব মানে ফার্স্ট কোনটাকে ধরতে হবে, ফার্স্ট একদম मेन প্রথম কোনটা मेन কনসিডারেশন করতে হবে? मेन इज दिस वन. फॉर व्हाट, विच लोड वी आर कंसिडरिंग. तुम लोग का स्ट्रक्चर डिजाइन मतलब किस लिए होता है, स्ट्रक्चर टू कैरी लोड ओनली, राइट, विदाउट फेलियर. तो यहाँ पे भी मेनली क्या है, लोड को ही कैरी करना पड़ेगा. तो लोड मतलब है ट्रैफिक लोड. ओके, তো ম্যাম ওটা ট্রাফিক লোড যদি আমি মানে মানে ধরতে যাই তাহলে তো আমার দেখতে হবে এটা মানে মানে টাইপ অফ রোডের ভিতরে চলে আসছে প্রথমে. যদি ন্যাশনাল হাইওয়ে হয় তাহলে তার থিকনেস এন্ড ম্যাটেরিয়াল কিরকম হতে yes, হবে, it will দেন change with মানে respect to the তাহলে তো traffic প্রথম, also. See, this is the main হ্যাঁ factor. ওটাই বলতে চাইছি, তাহলে তো This is the ফার্স্ট তো main আমাকে factor. ওটাই মানে ফ্যাক্টর দিতে হবে. फर्स्ट दिस इज द मेन फैक्टर. ठीक है, कि देखो ट्रैफिक लोडिंग जो नेशनल हाईवे ये हाईवे बोल रहे हो ना, वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है कि किसको हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं, হ্যাঁ किसको स्टेट हाईवे. ठीक है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम का জি मतलब জি है कि 1 आवर में कितना गाड़ी उस रास्ते से जाएगा, एक सेक्शन को क्रॉस करेगा. ओके, सो तो হ্যাঁ उसमें ट्रैफिक में এবার आ जाएगा. ওটা যদি ম্যাম ট্রান্সপোর্টেশন হয়, যে ট্রান্সপোর্টেশন লাইক মানে আপনি এরকম ধরে মানে গুডস ভেহিকল যদি হয় তাহলে তো ওটা আলাদা হবে, আর যদি মানে পাবলিক হয় তাহলে ওটার জন্য यस মেবি यस আলাদा হবে. यस, दैट वी विल सी. देखो, वेरी गुड क्वेश्चन, वही हम लोग देखेंगे. देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड. हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन देयर विल बी व्हीकल, जैसे हेवी ट्रैफिक लोडिंग. ठीक है, एचसीवी जो है या तुम्हारा एलसीवी है, लो कमर्शियल व्हीकल. ठीक है, या तुम्हारा पब्लिक जो तुम लोग बोल रहे हो सब হ্যাঁ হ্যাঁ ट्रांसपोर्टेशन बस. सी, देखो उस सब का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, उन सब का लोडिंग अलग है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू, मतलब एक स्टैंडर्ड व्हीकल में या स्टैंडर्ड एक्सेल में कन्वर्ट कर देना हमको. ओके, सपोज हम बोले थे कि एक गाड़ी है. ठीक है, वो कितना है, सपोज तुम्हारा ट्रक है. ठीक है, ट्रक उस रास्ते से कितना बार रिपीट कर सकता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ से वो रिपीट कर सकता है 100 टाइम्स. ठीक है, वेरस बाईसाइकिल वहां से कितना बार रिपीट कर सकता है, वो मोर देन 100. ठीक है, से फॉर एग्जांपल 2000 टाइम्स. ठीक है, रिपीट कर सकता है. क्यों, इसका एक अलग सा एक्सेल लोड है, इसका अलग सा एक्सेल लोड है. क्लियर है ये वाला. सपोज इसका एक्सेल लोड है জি A1,
ओके, एंड सपोज इसका एक्सेल लोड है A2, यहाँ पे बाइसाइकिल नहीं करेंगे, हम पैसेंजर कार करेंगे, ठीक है, पैसेंजर कार PC, दिस इज योर PC, ठीक है, सो दिस इज योर पैसेंजर कार, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, देखो इसका एक्सेल लोडिंग अलग है, इसका एक्सेल लोडिंग अलग है, ठीक है, तो ये कितना बार जा सकता है, 100 टाइम्स, विद मतलब थिकनेस विल बी सेम, ठीक है, एक ही थिकनेस के लेयर से वो से फॉर एग्जांपल हम लोग बोले कि 10 mm का थिकनेस है, ठीक है, तो उस 10 mm थिकनेस से ये कितना बार ट्रक को ले सकता है, 100 बार, ठीक है, और वो पैसेंजर कार को कितना बार ले सकता है, 2000 टाइम्स बार, ठीक है, 2000 बार। तो हमको क्या करना, इन दोनों को ही हमको कन्वर्ट कर देना है, क्या कि दिस इज इक्वल्स टू कितना स्टैंडर्ड लोड एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना स्टैंडर्ड लोड, ये इसमें कन्वर्ट कर देना है, ओके, हमको स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्डाइज करने से क्या हो जाएगा कि एक वैल्यू आ जाएगा, देन वी कैन सम अप, फिर हम लोग बोलेंगे कि टोटल स्टैंडर्ड लोड उस वाले व्हीकल से कितना बार जा सकता है, ओके, उस वाले पेमेंट से कितना बार जा सकता है, दिस वी विल लर्न इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स, देखना इसमें हम लोग इसी लेक्चर में तो पता चल जाएगा, ओके। कि फर्स्ट पहले तो ये देखना है कि एक्सेल लोडिंग क्या है, देन स्टैंडर्ड क्या है, वी कैन नॉट जंप डायरेक्टली, ओके, देयर विल बी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, देखेंगे हम विद एग्जांपल्स भी देखेंगे, वो जो बोले ना ESAL, ESW, EWLF, all these factors must be considered, okay। So first comes the axle configuration, देखो axle configuration, suppose this is a passenger car, एक एग्जांपल दे रहे हैं, पैसेंजर कार कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले ये जो लोडिंग है, इसका लोडिंग कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट व्हील में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा तुम्हारा, इसमें, इससे फिर तुम्हारा जाएगा एक्सेल में, फिर एक्सेल से देन लोडिंग व्हील लोड में जाएगा, ओके। तो देखो इसका ये जो है फ्रंट एक्सेल, ठीक है, एंड दिस इज ये पीछे वाला बैक को हम लोग बोल सकते हैं रियर, राइट, सो दिस इज रियर एक्सेल एंड दिस इज फ्रंट एक्सेल, ठीक है, क्लियर। तो टोटल लोड का कहाँ पे जाएगा, एक्सेल में पहले जाएगा, फिर देन इट विल गो टू व्हील लोड, दिस इज कॉल्ड द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। एंड फॉर डिजाइनिंग हम लोग फ्रंट एक्सेल को जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग रियर एक्सेल लोडिंग को ज्यादा कंसीडर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोडिंग इज बीइंग कैरिड बाय द रियर एक्सेल, ठीक है, तो हमको रियर एक्सेल का ही कंसीडर करना पड़ता है कि रियर एक्सेल में कितना लोडिंग आएगा फ्रॉम द होल व्हीकल, देन फ्रॉम रियर एक्सेल टू द व्हील्स अटैच्ड टू दैट एक्सेल, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, इज इट क्लियर। अब देखो ये एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या सेम रहता है, नहीं, तुम जैसे बोले ट्रक का बहुत मल्टी एक्सेल्स रहता है, राइट, किसी पैसेंजर का बस का बोलेंगे तो किसी किसी का 2 एक्सेल्स रहता है, राइट, सो देयर आर सेवरल एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू व्हीकल चेंज हो जाएगा, यस, व्हीकल क्लासिफिकेशन के अनुसार डिफरेंट एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, देन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन ये लोडिंग भी अलग अलग इसके ऊपर आएगा। तो फर्स्ट हमको ये देखना है कि एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, यही है एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो जनरली वी विल कंसीडर इंस्टेड ऑफ फर्स्ट हम लोग रियर फ्रंट के मतलब फ्रंट नहीं लेते इन जनरल, व्हाई, फॉर डिजाइन पर्पस, बिकॉज मैक्सिमम लोड हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय दिस रियर एक्सेल ओनली थ्रू द rear axle to the pavement layers, okay। so this is axle को हम साइड व्यू से पीछे से हम लोग देख रहे हैं, वही वाला पीछे से देख रहे हैं, ठीक है, एकदम क्रॉस सेक्शन वाइज हम लोग देख रहे हैं, it will look like this। so this is single axle, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सेल है, ओके, और एक एक्सेल को तुम काट के कोई भी लेफ्ट और राइट में चले जाओ, कोई भी सेक्शन लेफ्ट और राइट, तो कितना व्हील्स दिखाई दे रहा है तुमको, सपोज आई हैव कट दिस सेक्शन, ठीक है, हमने ये एक्सेल को कट करके कोई भी पोर्शन देखो, सपोज हम इस वाले डायरेक्शन वाले में देख रहे हैं, ओके, इसमें कितना सारा वो है तुम्हारा व्हील्स कितना है, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर और टायर आर देयर, 2, ठीक है, सो डुअल, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंगल एक्सल डुअल व्हील, ओके, या डुअल टायर, सिंगल एक्सल डुअल व्हील और डुअल टायर, मतलब एक एक्सेल को काट के कोई भी पोर्शन, आइदर दिस वन और दिस वन, देखो कौन सा तुम्हारा कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे, अगर सिंगल टायर होता तो क्या होता, सिंगल एक्सल सिंगल व्हील, ओके, दिस इज द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, एक एग्जांपल हम लोग बोल रहे हैं, ओके।
तो करना क्या है, तो देखो यहाँ से तुम्हारा एक्सेल लोड जाएगा, देन इट विल बी ट्रांसफर टू द व्हील टू द पेवमेंट। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने दिया है स्टैंडर्ड एक्सेल लोडिंग इज 8.16 टन, वो हम लोग देखेंगे। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ सिंगल एक्सेल सिंगल टायर। देखो एक्सेल एक है सिंगल, और इधर लेफ्ट या राइट में देखो कितना व्हील है, दिस इज नॉट टू व्हील, ओके, ये दो व्हील नहीं है, एक ही व्हील है। सो सिंगल एक्सेल सिंगल टायर, तो दिस इज सिंगल एक्सेल डुअल टायर। ठीक है, अब देखो पीछे रियर एक्सेल में तुम्हारा दो ठो टैंडम रहेगा, पास पास में दो ठो एक्सेल रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैंडम एक्सेल। कितना व्हील है एक एक्सेल में, कितना व्हील है देखो, हम इसको क्या टैंडम एक्सेल डुअल व्हील बोल सकते हैं, या टैंडम एक्सेल सिंगल व्हील? सिंगल यस, में। कोई भी एक एक्सेल में देखना है हमको। ठीक है, कोई भी एक एक्सेल का देखो, राइट और लेफ्ट में एक ही व्हील है, तो टैंडम दो मतलब एकदम आसपास में है एक्सेल, तो टैंडम एक्सेल सिंगल व्हील। सिमिलर दिस इज व्हाट टैंडम एक्सेल डुअल व्हील। ओके, देखो दिस मे वेरी, राइट, व्हीकल टू व्हीकल ये लोडिंग तुम्हारा देखना कॉन्फ़िगरेशन वेरी करता है। ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस कॉन्फ़िगरेशन ओनली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस होल थिंग इनटू वन सिंगल यूनिट। ठीक है, इसका देखो एक ही सिंगल है तो ठीक है, मतलब एक व्हील से जो इफेक्ट करेगा वही हम लोग कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे क्या देखो दो व्हील है, ठीक है, तो दो व्हील का हम लोग इक्विवेलेंट क्या करेंगे, दो व्हील का हम इक्विवेलेंट एक व्हील में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, दो व्हील का इक्विवेलेंट हम एक व्हील में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमको करना पड़ेगा डिजाइन। ओके, कि तो दैट इससे जो भी इफेक्ट होगा नीचे पेवमेंट में उतना ही इफेक्ट इससे भी होना चाहिए। देन वी कैन से दैट ये दोनों का ये क्या है, दोनों का ये इक्विवेलेंट है। ये वाला जो व्हील है वो इक्विवेलेंट है किसका, ये डुअल व्हील जो भी है तुम्हारा कॉम्बिनेशन, उसका इक्विवेलेंट है ये वाला सिंगल व्हील। देन हम इसको बोल सकते हैं सिंगल इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। इक्विवेलेंट वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ओके, इज इट क्लियर? देखो इसका दो जन मिलकर जो इफेक्ट करेगा पेवमेंट पे, हमको एक ही टायर कंसीडर करके सेम इफेक्ट निकालना है पेवमेंट में। ठीक है, अगर ये टायर सेम इफेक्ट निकाल रहा है, दो मिलकर जितना इफेक्ट कर रहा है, ये भी अकेला एक ही इफेक्ट करेगा, तो हम लोग बोलते हैं ना इसके बराबर है, ये अकेला ये दोनों के बराबर है, वैसे ही। ओके, तो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट है लेकिन सिंगल है। ओके, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन एंड द एक्सेल लोडिंग। ओके, देखो एक एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या दिख रहा है, रियर एक्सेल में क्या दिख रहा है बोलो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ट्रक? पहले रियर वाले एक्सेल में देखो सिंगल एक्सेल सिंगल टायर। ये सिंगल एक्सेल एक ही व्हील है, राइट, ये वाला सिंगल एक्सेल डबल टायर। ये सिंगल एक्सेल टू टायर, राइट, टू व्हील। और ये वाला देखो डबल एक्सेल टू टायर। डबल नहीं, टैंडम बोलते हैं। डबल ओके, एक्सेल डबल टायर। टैंडम एक्सेल टेंडम। टू टायर या टू व्हील, डुअल व्हील। ओके। ओके, ऑल दिस आर ट्राइडम। अब तीन ठो है, ट्राइडम एक्सेल एक ही व्हील है तो सिंगल व्हील। ओके, ये है ट्राइडम एक्सेल डुअल व्हील एंड दिस इज योर मल्टी एक्सेल। ओके, हम लोग मल्टी एक्सेल बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉर डिजाइन कंसीडर एज आई से रियर एक्सेल लोड को कंसीडर करना पड़ता है। ओके, एंड ऑल्सो फॉर डिजाइन कंसिडरेशन हम लोग को कौन सा व्हीकल का लोडिंग कंसीडर करना पड़ता है, कमर्शियल व्हीकल का। ठीक है, देन कमर्शियल व्हीकल अब किसको बोलेंगे, जिसका लैडन वेट इज ग्रेटर देन 3 टन्स। लैडन वेट का मतलब क्या है, टोटल वेट, जब एक ट्रक के पीछे पूरा सामान लोडेड रहेगा। से फॉर एग्जांपल ये अगर करेंगे, इसको लैडन वेट हम नहीं बोलेंगे, ये अगर भर्ती है पूरा लोडिंग करके रखा हुआ है, ठीक है, और जिसका अगर इसका वेट टोटल वेट इज ग्रेटर देन 3 टन, देन हम बोल सकते हैं कि दिस
कम्स अंडर योर क्या कमर्शियल व्हीकल, इसको हम कमर्शियल व्हीकल बोल सकते हैं। ठीक है, सेम अगर इसमें भी लोड करके लोडिंग करके वेट निकाले, अगर इसका वेट 3 टन से ज्यादा है तो हम इसको कमर्शियल व्हीकल कर सकते हैं। ओके, कमर्शियल व्हीकल बोल सकते हैं। सिमिलरली इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो पैसेंजर कार है इसको हम कमर्शियल व्हीकल बोल सकेंगे अगर ये पूरा लोडेड भी रहेगा तो 3 टन से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पैसेंजर कार। ओके, तो हम लोग डिजाइन कंसिडरेशन में कौन सा लोडिंग लेकर काम कर रहे हैं? फॉर डिजाइन कंसिडरेशन वी आर कंसिडरिंग दी कमर्शियल व्हीकल। इसीलिए देखो CVPD बोलते हैं, कमर्शियल व्हीकल पर डे। हम बोलते हैं ना इतना CVPD है, इतना ट्रैफिक है वहां पे, मतलब इतना ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है 100 CVPD, मतलब कमर्शियल व्हीकल पर डे। ओके, तो जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स को ही। ओके, जिसका कमर्शियल व्हीकल जिसको बोलते हैं जिसका लैडन वेट इज ग्रेटर देन 3 टन्स। ओके, सो ग्रॉस वेट ऑफ व्हीकल विथ लोडेड कंडीशन। ठीक है, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सम कमर्शियल व्हीकल्स। ओके, अब इसमें से कोई कोई लाइट वेट होता है, कोई हेवी वेट होता है, तो LCV HCV हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नाउ कम्स दी, ये तो फर्स्ट हो गया एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द स्टैंडर्ड एक्सेल। हम क्या बोले थे, वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग, वी हैव टू स्टैंडर्डाइज। देखो हर किसी का अलग अलग लोडिंग आएगा, हर किसी का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, हर किसी का अलग अलग लोडिंग आएगा। हेलो, अच्छा तो हेलो, अच्छा, so see, each vehicle has different configuration and obviously their loading will also be different. So what we have to do, तो हम क्या इंडिविजुअल का करके डिजाइन करेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, we will convert everything या we will standardize। ठीक है, हमको स्टैंडर्ड व्हीकल में कन्वर्ट कर देना है या स्टैंडर्ड लोडिंग में कन्वर्ट कर देना है। तो मतलब इसका जो भी एक्सेल लोड होगा उसको हम एक स्टैंडर्ड एक्सेल लोड में कन्वर्ट करेंगे, सेम इसका भी एक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एक्सेल लोड। तो स्टैंडर्ड एक्सेल लोड क्या क्या है? दीज आर दी वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड एक्सेल लोडिंग। ओके, जैसे देखो सिंगल एक्सेल विथ सिंगल टायर का स्टैंडर्ड हो कितना टर्न होना चाहिए? 6.6 टन। ओके, सिंगल एक्सेल विथ डुअल टायर का है 8.16 टन। ये तुम लोग का MCQs में आ सकता है। ओके, टैंडम एक्सेल मतलब 2 एक्सेल एक साथ है इन अ ग्रुप विथ डुअल टायर्स। ठीक है, इसको कितना है लोडिंग? 15.1। ओके, एंड ट्राइडम एक्सेल कितना हो जाएगा? एक्चुअली ये 14.96 भी होता है, कभी कभी 14.96 भी तुम लोग लिख सकते हो। ओके, ट्राइडम एक्सेल कितना है? 2 एक्सेल्स, सॉरी ये 3 एक्सेल्स होगा। ओके, 3 एक्सेल्स इन अ ग्रुप विथ डुअल टायर का लोडिंग होगा देखो 22.9। जैसे जैसे एक्सेल बढ़ रहा है, जैसे जैसे टायर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टायर्स बढ़ रहा है, तुम्हारा ये लोडिंग भी बढ़ता जा रहा है। ओके, इज इट क्लियर? मेनली इसमें से सिंगल एक्सेल डुअल टायर एंड टैंडम एक्सेल डुअल टायर का MCQs दिया क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक का होता है कि सिंगल एक्सेल का स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कितना है? 8.16 टन। टैंडम एक्सेल का कितना है? बोलेगा नहीं डुअल टायर सिंगल टायर, लेकिन टैंडम एक्सेल का कितना होगा? देन इट विल बी 14.96 या ये वाला 15 अप्रॉक्स। ओके, इज इट क्लियर? हाँ मैम। देखो ये है सिंगल एक्सेल विद सिंगल टायर 6.6 टन। ठीक है, ये सिंगल एक्सेल विद डुअल टायर 8.16 टन, टैंडम एक्सेल विद डुअल टायर 15.1 और ट्राइडम एक्सेल, ऐसे 3 एक्सेल रहेगा एक साथ। ओके, पीछे टायर्स में जैसे हम बोले थे अभी, तो उसका होगा इतना टन। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर है कि नहीं है? बोलो तो स्टैंडर्ड एक्सेल समझ में आया? सपोज हाँ, আচ্ছা ম্যাম, সাপোজ ধরুন আমি এবার স্ট্যান্ডার্ড লোড করব। এবার ধরুন আমার এই 4টা ক্যাটাগরির যে লোড আছে, স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল লোড আছে, 4টা মানে ভেহিকল চলবে রোডের উপর দিয়ে। এবার আমি স্ট্যান্ডার্ড লোড কোনটাকে ধরবো? যে ওই লোডটা ধরে আমাকে রোডটাকে মানে ডিজাইন করতে হবে। स्टैंडर्ड लोड इज दिस, दीज आर द फिक्स्ड लोडिंग। ओके, ये तुमको दिया गया है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द गिवन लोड्स इनटू दिस वन। ठीक है, से फॉर एग्जांपल तुम्हारा ट्रक जा रहा है। ठीक है, ट्रक का अगर लोड हम लोग बोलेंगे सपोज, मतलब जिसका एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला सपोज। ठीक है, सिंगल एक्सेल डुअल टायर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रक जा रहा है। ठीक है, अगर इसका लोडिंग कितना है? सपोज इसका लोडिंग है तुम्हारा हम लोग बोल सकते हैं सपोज 9 टन। ओके, लैडन वेट आ रहा है इसका 9 टन। ठीक है, तो अब इसको हमको कन्वर्ट कर देना है कि 1 ट्रक
इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, मतलब इसका जो भी एक्सेल लोडिंग है वो कितना होगा, इसका इक्विवेलेंटली इसका कितना होना चाहिए, ठीक है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। বুঝেছো? বুঝলাম না ব্যাপারটা কি একটু ঠিক আছে, আমি একটা এক্সাম্পল দেবো তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা, ঠিক আছে? একটা অঙ্ক আমি দিয়েছি লাস্টে। मतलब कि तुम्हारा ये जो ट्रक्स है ना, ठीक है, सपोज पकड़ो ये वाला है तुम्हारा स्टैंडर्ड व्हीकल का लोडिंग, सपोज हम बोल रहे कि ये वाला का जो भी लोडिंग आएगा हमको मिलेगा एक स्टैंडर्ड एक्सेल लोडिंग मिलेगा, मतलब 8.16 टन, ठीक है। अब तुम्हारे देखो उसी रास्ते से ये वाला जा रहा है 10 बार, ठीक है, ठीक है, अगर ये वाला 10 बार जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट अगर हम करेंगे इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ये वाला कितना बार जाना चाहिए, उससे ज्यादा ना कम? सपोज हाँ बेशी হবে ज़्यादा ही হবে यस, क्यों, कैसे ज़्यादा आया, होना चाहिए कैसे आया, बिकॉज ये क्योंकि थोड़ा उसका कम लोड तो है, ज़्यादा है इसके राइट? इक्विवेलेंट करने के लिए ज़्यादा हाँ, इसका तो सपोज 10 टन है, इसका सपोज 8 टन है, ऑब्वियसली एक रोड से हम लोग 10 टन का वहां से सपोज जा सकता है कितना 100 बार जा सकता है, तो ऐसा वाला तो उससे कई बार जा सकता है ना, तो हमको क्या कर दिया, देखो इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें हमने, ठीक है, वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू दिस ग्रीन लोडिंग, ओके। तो ये है स्टैंडर्ड। सेम अगर हम बोलेंगे कि अच्छा अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो सब बड़ा ही हो रहा है, इससे बड़ा ही लग रहा है, पैसेंजर कार अगर आया, আমাকে হাইস্ট টু লোয়েস্ট আনতে হবে हाँ पैसेंजर कार अगर जा रहा है, ठीक है, अभी 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 हम बोलेंगे कि सपोज तुम्हारा स्टैंडर्ड लोड ये वाला है सपोज, ठीक है, ये वाला का लोड जो भी होगा इट विल गिव अस द स्टैंडर्ड एक्सेल लोडिंग, ठीक है। अब देखो ये वाला उस पेवमेंट से 100 टाइम्स जा रहा है, ठीक है, अब ये वाला कितना बार जाएगा, इसका इक्विवेलेंट इसमें कन्वर्ट कर देना, तो ये वाला कितना बार जाना चाहिए, कम ना ज्यादा? কম হবে ये 10 टाइम्स হবে 100 टाइम्स इट कैन मूव फ्रॉम दैट पेवमेंट, ओके। अब इसको हम इस वाले में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या 100 बार ही जा सकेगा, ये नहीं, लोडेड कम नहीं, कम, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड लोडिंग, ठीक है। तो व्हाट वी हैव सी यहाँ पे क्या किया हमने, इसको कन्वर्ट कर दिया। আমি কোনটা বলছি हम्म, এটা কি बोलो। আমাকে মানে হাইয়েস্ট টু লোয়েস্ট আনতে হবে নাকি লোয়েস্ট টু হাইয়েস্ট মানে এখানে কি কোনো কম্পালসরি আছে কোনো জিনিস देखो ये है इतना स्टैंडर्ड हिसाब से हम लोग पेमेंट डिजाइन कर रहे हैं, ओके, बट इन दी तुम्हारा फील्ड में क्या हो जाता है कभी कभी इट में एक्सिट, ठीक है, तो एक्सिट करने के टाइम में एक एक्सेल लोड होता है, दैट एक्सेल लोड इज कॉल्ड द लीगल एक्सेल लोड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लीगल एक्सेल लोड, मतलब लीगली हम स्टैंडर्ड एक्सेल के ऊपर भी कितना अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो व्हीकल अगर लीगल एक्सेल इससे ऊपर है और लेकिन लीगल एक्सेल लोड के विद इन है, देन वी विल अलाउ दोज व्हीकल, अदरवाइज क्या करेंगे हम लोग वहां पे लिख देते हैं, साइन बोर्ड में रहता है कि इतना टन ये मैक्सिमम जा सकता है, दैट इज द लीगल एक्सेल लोड, इतना टन लेकर ये जा सकता है इस वाले रास्ते से, ओके, तो उतना तक ही अलाउ करना है, नहीं तो क्या करना उसको रोक के फिर से वो घटा देना है, राइट, लोडिंग को घटा देना या उसको अलाउ नहीं होगा वहां से, ओके, क्लियर? ठीक है जी जी Now contact area, another term is what, contact area and contact pressure, ये बार बार contact area तुम लोग को डिजाइन में काम में आएगा, एरिया में बेसिकली contact area से क्या निकलेगा, contact radius, तो बहुत सारे फॉर्मूला में ये ए बोल के दिया रहता है, तो दिस इज कॉल्ड द contact radius, ओके, एंड द contact pressure क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा टायर और पेवमेंट के बीच में जो सरफेस है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है, कहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है मतलब व्हीकल से कौन से एरिया के थ्रू तुम्हारा पेवमेंट में कांटेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द कांटेक्ट एरिया, और उसमें जो प्रेशर आ रहा है उसको बोलते हैं कांटेक्ट प्रेशर, ओके। सो वंस यू नो द व्हील लोड एंड वंस यू नो द एरिया, सो कैन वी कैलकुलेट व्हाट इज द कांटेक्ट प्रेशर, तुमको टोटल व्हील लोड पता है, ठीक है, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ दे दिया है, बोल रहा है कि व्हील लोड भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सपोज दैट इज पी एंड यू नो द एरिया आल्सो, ठीक है, मतलब रेडियस भी तुमको पता है और यू नो द कांटेक्ट एरिया, सो वंस यू नो द लोडिंग, वंस यू नो द कांटेक्ट एरिया, सो कैन वी कैलकुलेट कांटेक्ट प्रेशर,
कैसे? प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट? लोड और एरिया के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए? प्रेशर इज इक्वल्स टू, हाय रे, ए स्ट्रेस बाय प्रेशर इक्वल्स टू এরিয়া। এটা যদি না বলতে পারো তাহলে আর কি বলবো বলো তো তোমাদেরকে আমি? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या है? लोड और एरिया का क्या होना चाहिए? समेशन। हैं? বুঝলাম না, আবার বলুন কি বললেন? প্রেসারের ফর্মুলা কি? यू नो द एरिया, यू नो द लोड, यू नो द एरिया, ठीक है? एक एरिया तुमको पता है, उस एरिया से टोटल लोडिंग कितना है वो भी तुमको पता है। सपोज दिस इज ए, एरिया इज ए एंड यू नो द लोडिंग, सो व्हाट इज द प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया হবে ম্যাম, পি বাই এ। Yes, P by A, right? So contact pressure is will load by contact area, simple. That is P by pi A square, right? Area है, A is your radius, ठीक है? ये एरिया नहीं है, ये रेडियस है, A देखो यहाँ पे है, ओके? क्लियर फॉर्मूला? ओके। तो अब देखो कहीं कहीं पर डिजाइन के टाइम में कि हमको कंसीडर करना ये क्या सर्कुलर है। इन जनरल हम लोगों ने क्या किया, फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव कंसीडर दिस कॉन्टैक्ट एरिया टू बी सर्कुलर, लेकिन ये जनरली सर्कुलर नहीं होता है, ओके? इट इज योर इलिप्टिकल एंड रेक्टेंगुलर, मतलब कि देखो इलिप्टिकल टाइप का शेप आ रहा है, मतलब ये है तुम्हारा एक रेक्टेंगल एरिया, ये छाप है, ओके? इम्प्रिंट है, मतलब जब तुम टायर को ऐसे प्रेस करोगे तो वहां पे कैसा इम्प्रिंट बैठेगा, उसका एरिया कैसा होगा, ठीक है? तो जनरली होता क्या है, एक रेक्टेंगुलर होता है और यहाँ पे सेमी सर्कल, यहाँ पे सेमी सर्कल, तो सर्कल प्लस रेक्टेंगल मिलकर वो एरिया होता है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव कन्वर्टेड दिस थिंग इनटू इक्विवेलेंट सर्कुलर एरिया, ओके? सो एज्यूम कॉन्टैक्ट एरिया टू बी सर्कुलर, जिसका रेडियस है ए, ओके? तो जो ऐसा दिखेगा देखो इम्प्रिंट, okay? So this is called the contact area. Now comes the one more factor रेक्टेंगुलर is शेप का important. है, पैटर्न शेप का क्या है? ये रेक्टेंगल प्लस थोड़ा सर्कुलर जनरली ऐसा फॉर्म होता है, ओके? देन इसको हम लोग कन्वर्ट करके एक सर्कल में कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है? नहीं तो तुमको ये एरिया कैलकुलेट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, ओके? तो उसको सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर दिया, एक सर्कुलर में हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इसका इम्प्रिंट विल बी अ सर्कुलर इन नेचर, ओके? ফিল্ডে কি এটাই কনসিডার করা হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যালি तो এটা হয়, ओके? लेकिन फॉर डिजाइन हम लोग बोल रहे ना बार बार, डिजाइन के लिए वी हैव एज्यूम दिस एज अ सर्कुलर। तो देखना तुम लोग का जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा वहां पे कांटेक्ट प्रेशर, कांटेक्ट एरिया नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा रेडियस ऑफ द टायर, ठीक है? या रेडियस ऑफ द इम्प्रिंट, ठीक है? या लोड डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस दे देगा, मतलब इट इज सर्कुलर इन नेचर, ओके? तो वो सर्कुलर एज्यूम करके हमको डिजाइन करना पड़ता है। नाउ कम्स अनदर फैक्टर विच इज कॉल्ड द रिजिडिटी फैक्टर। देखो रिजिडिटी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा टायर का कंडीशन कैसा है, ये इन्फ्लेटेड है, मतलब कि ओवर इन्फ्लेटेड है, अंडर इन्फ्लेटेड है, ना कि ठीक ठाक है, नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब ज्यादा हवा भरा है टायर में, ना कि कम हवा भरा है, ना कि एकदम ठीक ठाक है, ओके? सो ये वाला भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है तुम्हारा डिजाइन, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टैक्ट प्रेशर, ठीक है? कॉन्टैक्ट प्रेशर अगेन डिजाइन में इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्टैक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर इज द फॉर्मूला ऑफ दिस रिजिडिटी फैक्टर, ओके? फॉर डिजाइन पर्पज वी कंसीडर बोथ टू बी इक्वल, और दोनों का वैल्यू कितना है 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके? तो कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर मस्ट बी इक्वल, विच इज इक्वल्स टू अगेन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर डिजाइन पर्पस, ओके? तो कभी कभी रिजिडिटी फैक्टर इक्वल्स टू 1 है तो केस बोल देगा कि क्या है, तब क्या हो जाएगा, इफ इट इज इक्वल्स टू 1 देन कॉन्टैक्ट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू टायर प्रेशर, सिंपल। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर इक्वल्स टू टायर प्रेशर इज इक्वल्स टू 7 kg, हम लोग पता है, सो दोनों का वैल्यू 7 हो जाएगा, ओके? इफ RF इज ग्रेटर देन 1, RF इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है, CP इज ग्रेटर देन TP, RF इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, CP इज ग्रेटर देन TP, तो ठीक है? देखो CP इज ग्रेटर देन TP, और ये वाला केस भी रह सकता है, आइदर कॉन्टैक्ट प्रेशर मतलब ऊपर वाला
फैक्टर ज्यादा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टायर प्रेशर, मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर हम लोग तो एक एज्यूम किए थे कि 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। So we can say that if RF is greater than 1, our contact pressure may be greater than 7 or our tire pressure may be lesser than 7. So this is the equation. Similarly vice versa. Okay. तो ये MCQs के लिए थोड़ा याद रखना है। बस अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे और ये वाला टर्म याद रखोगे देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस थिंग्स आल्सो, ठीक है, MCQs में अगर रहेगा तो। क्लियर? देखो अब देखो टायर इन्फ्लेशन कैसे पता चल रहा है कि टायर में हवा कम है, ना ज्यादा है, ओवर है, ना अंडर है, ना कि प्रॉपर है, ठीक है। तो ये रिजिडिटी फैक्टर के ऊपर भी तुम्हारा या सीपी और टीपी के रिलेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा अंडर इन्फ्लेटेड, इन दिस केस योर सीपी कॉन्टैक्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन टायर प्रेशर। प्रॉपरली अगर टायर इन्फ्लेटेड है तो क्या है, दोनों इक्वेट है। और अगर ये ओवर ज्यादा अगर हवा दे दिया है तो उसका मतलब है तुम्हारा टायर प्रेशर ज्यादा है। ओके, टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन कॉन्टैक्ट प्रेशर। अगर तुम्हारा टायर में हवा कम है तो टायर प्रेशर इज लेसर देन कॉन्टैक्ट प्रेशर, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो बल्जिंग क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से बल्जिंग हो रहा है मतलब क्या है, देखो यहाँ पे तुम्हारा छाप आएगा, ये ऊपर की तरफ है और ये वाला छाप आएगा, इसका इम्प्रिंट होगा, इसका इम्प्रिंट होगा, ये वाला एरिया का इम्प्रिंट, ये वाला एरिया का इम्प्रिंट, ठीक है, अंडर में। इसमें प्रॉपरली अगर रहेगा तो पूरा इम्प्रिंट आएगा पूरा टायर का, ठीक है। और ओवर में से बीच वाला का इम्प्रिंट आएगा क्योंकि ये ऊपर उठ गया है, ठीक है। अब ये वाला केस कैसे आ रहा है, ये नीचे की तरफ क्यों है, ये वाला ऊपर की तरफ क्यों है, ये वाला केस कैसे आ रहा है, लेट अस सी कि एट लो टायर प्रेशर, ठीक है, टायर प्रेशर कम है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होना चाहिए था, टायर के अंदर जो भी प्रेशर हो रहा है हवा की वजह से और कॉन्टैक्ट प्रेशर में दोनों में इक्वेट होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टीपी में कितना एरो है, 2 एरो, मतलब इट इज लेसर देन कॉन्टैक्ट प्रेशर, वेयर कॉन्टैक्ट प्रेशर में कितना एरो है, 4 एरो, हम समझाने के लिए कि कॉन्टैक्ट प्रेशर ज्यादा है टायर प्रेशर से, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये तो हवा में उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी तो हवा में उड़ा नहीं है ना, तो क्या कर रहा है यहाँ पे इक्विवेलेंट करने के लिए टायर का जो आउटर सरफेस से ये ऐसा प्रेशर इस वाले में जा रहा है, सो दैट ये इक्विवेलेंट होगा। देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस वन, ओके। तो ये किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, टायर का आउटर वॉल्स किस तरफ प्रेस करने का कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ। तो इसीलिए क्या हो जा रहा है, नीचे बल्जिंग हो जा रहा है, देखो ये देखो इसमें बल्जिंग हो रहा है ऐसे नीचे की तरफ जाने का, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है, मतलब सीपी ग्रेटर देन टीपी, वो वाला फर्स्ट केस में, ठीक है। सो वॉल्स ऑफ द टायर इज इन कंप्रेशन, टायर इज अंडर इन्फ्लेटेड, इसको हम लोग बोलेंगे अंडर इन्फ्लेटेड, एंड सिंस सीपी इज ग्रेटर देन टीपी योर आरएफ विल बी ग्रेटर देन 1, सीपी इज ग्रेटर देन टीपी सो आरएफ इज ग्रेटर देन 1। क्लियर ये वाला, इज इट क्लियर? हाँ मैम। ओके, दूसरा केस क्या होगा बोलो तो, एट हायर टायर प्रेशर में क्या हो जाएगा, हायर टायर प्रेशर में देखो टायर के अंदर बहुत ज्यादा हवा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, वेरस कॉन्टैक्ट प्रेशर बहुत कम है, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंट में रखने के लिए और एरो ऊपर की तरफ यहाँ से जाएगा और एरो ऊपर की तरफ यहाँ से जाएगा, मतलब आउटर वॉल की तरफ ऊपर, इसके तरफ ऊपर, मतलब ये क्या है, आउटर वॉल्स आर इन टेंशन, ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो टेंशन हो रहा है, ओके। तो टेंशन होने की वजह से क्या होगा, ये वाला सरफेस ऊपर उठेगा, ये वाला सरफेस भी ऊपर उठेगा, वेरस सिर्फ ये वाला सरफेस ही नीचे सरफेस में कांटेक्ट में रहेगा, ओके। सो द वॉल्स ऑफ द टायर इज इन टेंशन एंड इन दिस केस इट इज कॉल्ड ओवर इन्फ्लेटेड, ठीक है। सो सीपी बाई टीपी था, आरएफ का वैल्यू क्या है, सीपी बाई टीपी, सिंस सीपी इज लेस देन टीपी, मतलब न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, सो आरएफ का वैल्यू लेसर देन 1 होगा, ओके। तो इस वाला केस वाला देखो, ये वाला केस, ये देखो ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये भी ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये सरफेस पूरा उठ गया, सिर्फ बीच वाला कांटेक्ट में रहा, तो ये ओवर इन्फ्लेटेड है, ओके। सो ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है कि कब ओवर इन्फ्लेटेड होगा, कब अंडर इन्फ्लेटेड होगा, विच केस में, ठीक है, आरएफ का वैल्यू क्या होने से क्या होगा, ओके। और नॉर्मल में तो दोनों इक्वेट हो जाएगा, एट प्रॉपर टायर प्रेशर इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट प्रेशर which is properly inflated, in that case RF is equals to 1, ठीक है।
अब आते हैं रिपीटेशन ऑफ लोड। हम जो बोले थे ना अभी, कितना बार रिपीट कर सकता है, ठीक है। सो डिजाइन इज बेस्ड ऑन दी टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड। देखो बार बार हम बोले थे स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कंसिडर करना है, ठीक है। हमको सब कुछ को स्टैंडर्डाइज में कन्वर्ट कर देना। वी हैव टू कन्वर्ट द ऑल काइंड ऑफ लोड और द ऑल नंबर ऑफ एक्सेल लोडिंग टू द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ लोडिंग, ओके। तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड में विच इज यूजुअली कितना है, 8.16 टन था या 80 किलो न्यूटन बोल सकते हैं। 1 मिनट, ओके। हेलो, सॉरी। So design is based on the total number of standard axle loading which is your 8.16 ton या 80 किलो न्यूटन भी हम लोग बोल सकते हैं, ओके। या तुम्हारा 80,000 kg भी हम लोग बोल सकते हैं, 8160 kg भी बोल सकते हैं, ओके। सो एक मैक्लॉयड थ्योरी था जो अभी हम बोले ना कि एक स्टैंडर्ड लोडिंग है, वो अगर 10 बार जाएगा तो तुम्हारा उससे ज्यादा वाला लोडिंग कितना बार जाएगा, ठीक है। तुम्हारा एक स्टैंडर्ड लोडिंग है सपोज 816, ये वाला हम पकड़ रहे हैं, ओके। ये वाला अगर तुम्हारा 100 बार जाएगा एक पेवमेंट से, ठीक है, इससे ज्यादा सपोज 10 टन वाला व्हीकल आ रहा है, तो वो कितना बार जाना चाहिए, उससे ज्यादा ना कम। हाँ, एक पेवमेंट हम लोगों ने डिजाइन किया सच है, अगर उस पेवमेंट के ऊपर से इतना लोडिंग वाला ट्रक जाएगा तो वो रिपीट कितना बार कर सकता है, वैसा वाला कितना बार जा सकता है वैसा वाला व्हीकल, 100 तो व्हीकल्स उस वाले पेवमेंट से जा सकता है विदाउट एनी फेलियर, ओके। अब उसी पेवमेंट से हम लोग 10 टन वाला व्हीकल को भी पास कर रहे हैं, तो ये वाला कितना बार जा सकता है उस वाले पेवमेंट से, 100 से ज्यादा ना कम, ज्यादा जाएगा। हाँ। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि तुम्हारे घर के सामने एक रास्ता है, ठीक है, उससे सपोज क्या क्या गाड़ी जा सकता है, बाइसाइकिल जा सकता है, ठीक है, और पैसेंजर कार ये सब जा सकता है, ओके। तो तुम्हारे घर के सामने से सपोज दिन में मतलब हम लोग बोलते हैं कि थ्रू आउट इज डिजाइन पीरियड, एग्जांपल सिर्फ ले रहे, थ्रू आउट इज डिजाइन पीरियड वहां से सिर्फ 100 बाइसाइकिल्स जाएगा तो वो फेल नहीं करेगा, ओके। 100 अगर बाइसाइकिल लोडिंग ऊपर से जाएगा तो वो फेल नहीं करेगा, दैट इज द स्टैंडर्ड, बाइसाइकिल स्टैंडर्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर वहां से तुम ट्रक पास करोगे तो वो भी क्या 100 बार जाएगा, जा सकता है वहां से विदाउट फेलियर? नहीं ना मैम। नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि उसका लोड ज्यादा है, अगर वो स्टैंडर्ड लोड से ज्यादा लोडिंग देगा, राइट। बाइसाइकिल का जो भी लोडिंग है वो स्टैंडर्ड अगर है तो ट्रक क्या हो जाएगा, उससे बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एक्सेल लोडिंग से बहुत ज्यादा लोडिंग देगा ट्रक, तो वहां पे नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ दैट ट्रक विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर एक पेवमेंट से इतना स्टैंडर्ड एक्सेल लोड इतना कितना बार जा सकता है, 100 टाइम्स जा सकता है, तो 10 टन वाला व्हीकल्स कितना बार जाएगा, इससे कम बार जाएगा, ओके। अगर ये हम बोलेंगे कि 6 टन वाला व्हीकल क्या जाएगा, 100 से ज्यादा टाइम्स जा सकता है। क्लियर? क्लियर? मतलब जितना ज्यादा लोडिंग होगा उतना कम रिपीटेशन ऑफ लोड विल बी अलाउड। अब तो क्लियर होगा, राइट। जितना कम लोडिंग होगा वो ज्यादा बार रिपीट कर सकता है वहां से, राइट। तो यहीं से तुम्हारा मैक्लॉयड थ्योरी एक आया है विच इज दिस वन, P1 into N1 equals to P2 into N2. P is what लोडिंग है, N is the रिपीटेशन, मतलब अगर कोई व्हीकल का लोडिंग P है, अगर उसका रिपीटेशन N है तो ये है P1 into N1 must be equals to P2 into N2। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं that loading is indirectly proportional to number, or we can say number of repetition is indirectly proportional to loading, ठीक है। मतलब लोडिंग अगर ज्यादा है तो नंबर विल बी लेस, ओके, रिपीटेशन विल बी लेस, ठीक है। ऐसे ये रिलेशन आया है मैक्लॉयड थ्योरी, अभी जो हम एग्जांपल दिए वही, ओके। अब आते हैं जो फैक्टर्स, कैसे कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। अब हमको देखना है कि यही वही बोले ना, बाईसाइकिल का एग्जांपल देते हैं हम लोग, ठीक है।
अगर एक जगह से 8.16 लोडिंग जो भी आएगा वो अगर 100 बार जाएगा तो 10 टन का कितना बार जाना चाहिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट ये कैसे निकालेंगे, और ये नंबर हमको कैसे निकालना है, इट्स नॉट अ यूनिटरी मेथड, ठीक है, कि सिंपल हम यूनिटरी मेथड कर दिया मतलब 100 बाय 8.16 इंटू 10 करके, ऐसा नहीं होता है, ओके। सो देयर विल बी सम फैक्टर्स, हमको फैक्टर्स कंसीडर करना पड़ेगा। सो दीज आर दोज फैक्टर्स, कैसे निकालना है ये वाला फैक्टर्स है, क्लियर। तो ये वाला फैक्टर फर्स्ट क्या फैक्टर है, देखो इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर या EALF बोल सकते हैं, ओके। इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर इज व्हाट, इट डिफाइंस द क्वेश्चन, देखो ये पढ़ो क्या है, इट डिफाइंस द डैमेज पर पास टू अ पेवमेंट by the ith type of the axle relative to the damage per pass of the standard axle load, कुछ नहीं। अगर ये वाला डैमेज, ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट व्हीकल जो है, कोई भी व्हीकल पकड़ो, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड लोड पकड़ेंगे, अगर स्टैंडर्ड लोड उस जगह से जाएगा तो सपोज इतना डैमेज क्रिएट कर रहा है, W स्टैंडर्ड डैमेज क्रिएट कर रहा है, एक पेवमेंट के ऊपर से जाएगा तो इतना डैमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और तुम्हारा ith व्हीकल, कोई भी ith व्हीकल अगर उसी पेवमेंट से जाएगा तो कितना डैमेज कर रहा है, WI। हम विथ रेस्पेक्ट टू W क्यों कर रहे हैं डैमेज को, क्योंकि जितना ज्यादा लोडिंग उतना ज्यादा डैमेज, ठीक है। सो वी आर कंसिडरिंग डैमेज विथ रेस्पेक्ट टू द वेट, ठीक है, वेट के हिसाब से हम बोलेंगे कि डैमेज क्रिएट कर रहा है। आई टाइप ऑफ एक्सेल যেটা আছে I is ith व्हीकल, कोई भी व्हीकल, हाँ हेलो, ওটা हेलो, वो ज्यादा है कि कम है? इट मे बी ग्रेटर, इट मे बी लेसर, ओके 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 ओके, ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ith कोई भी व्हीकल, ठीक है। सो इन दोनों के रिलेटिव जो डैमेज हो रहा है दैट इज टू द पावर 4, हम बोले ना यूनिटरी मेथड नहीं होगा यहाँ पे टू द पावर 4 कर रहे हैं, दैट इज फोर्थ पावर लॉ हम यूज करके, अगेन दिस इज एम्पिरिकल, मतलब एक्सपेरिमेंट करके वो करके रिलेशन निकाला है, ओके, दिस इज कॉल्ड द फोर्थ पावर लॉ। तो ये जो रेशियो आएगा दैट इज द ith व्हीकल का डैमेज फैक्टर है, ठीक है, ith व्हीकल की वजह से कितना डैमेज होगा रास्ते पे विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एक्सल लोड, उसको बोलते हैं EALFI फॉर ith व्हीकल, ओके। तो ये करना है हमको, पहले निकालना है, या इसको हम लोग FI भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ELF को हम लोग FI भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, अब इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल लोडिंग, अब कन्वर्ट करना है, हम जो बोले थे ना कि 8.16 का अगर 100 बार जाएगा तो 10 टन कितना बार जाएगा, वो नंबर हमको चाहिए, ठीक है। फॉर दैट नंबर वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, तो यहाँ से वो नंबर आएगा कि इक्विवेलेंट कितना लोडिंग उसके इक्विवेलेंटली वहां पे रिपीटेटिव वे में जाएगा, okay. So this is called the equivalent single axle load which is ESAL, and that is what, अगर FI तुमको पता है, number of repetition of that ith vehicle हमको पता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, सपोज फर्स्ट व्हीकल गया, ठीक है, उसका FI निकल आया तो 10 बार गया था, ठीक है, सेकंड व्हीकल गया उसका FI निकाला, उसका 100 बार गया, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट ESL इज व्हाट, समेशन ऑफ FI into NI, ओके, विच इज ये वाला तो हमको फॉर्मूला पता है, इंटू NI कर देना है, okay. So WI is the axle load of the ith type of the vehicle, W standard is the standard axle load, NI is the number of repetition of the ith type of the axle load, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा डिनोट कर लो तो, सॉरी लिख लो तो थोड़ा, WI by W standard to the power 4, ठीक है, इंटू NI करने से SL समय ESL आएगा। एग्जाम्पल देते हैं, रुको देखो ये वाला एक एग्जाम्पल देता तब पता चलेगा। सी लेट number of load repetition, okay, expected by 80 kilonewton standard axle, ये standard axle है तो, ठीक है, this is W standard, so let the number of load repetition expected by 80 kilonewton standard axle load is 1000, मतलब कि 80 kilonewton लोड कितना बार जाएगा, 1000 बार जा सकता है, ठीक है। 160 kilonewton लोड कितना बार जाएगा, 100 बार जा सकता है। 40 kilonewton लोड कितना बार जाएगा, 10,000 टाइम्स जा सकता है। तो सबका क्या निकालो, इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल लोड, मतलब स्टैंडर्ड कन्वर्ट कर दो, सबको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो, इसका भी स्टैंडर्ड निकालो, इसका भी स्टैंडर्ड निकालो, इसका भी स्टैंडर्ड निकालो, फिर हमको सम अप करके क्या निकालना है, इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल लोड निकालना है, ठीक है। तो दिस इज गिवन,
पहले WI लिख लो 40 80 160 देखो 40 फिर 80 हम ये मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ओके 40 किलो न्यूटन का कितना है 10,000 80 किलो न्यूटन का कितना है 1000 160 किलो न्यूटन का रिपीटेशन कितना है रिपीटेशन इज डिनोटेड बाय n कितना है 100 है ठीक है देन कैलकुलेट FI का फॉर्मूला क्या था WI by W स्टैंडर्ड इनटू टू द पावर 4 तो WI कितना है 40 स्टैंडर्ड बोल ही दिया कितना है 80 है डिवाइड बाय 80 टू द पावर 4 दिस गिव यू द FI तो सेम इसका हो जाएगा कितना 80 by 80 टू द पावर 4 1 ये हो जाएगा 160 by 80 टू द पावर 4 16 ओके फिर हमको दिस FI into NI करना है मतलब 1.0625 into this one will give you this factor फिर ये सबका समेशन कर दो तो निकलेगा इतना इक्विवेलेंट इतना होगा ठीक है ম্যাম আবার একটু বলবেন আমি বেরিয়ে গেছিলাম FI फॉर्मूला क्या है ये है ना you know WI this is WI ठीक है this is NI तो W1 by W स्टैंडर्ड टू द पावर 4 ठीक है W2 80 है ये स्टैंडर्ड है 80 तो 80 by 80 टू द पावर 4 ये W3 कितना है 160 है तो W3 by W स्टैंडर्ड टू द पावर 4 W स्टैंडर्ड है तुम्हारा 80 ठीक है सो वी आर गेटिंग FI अब FI into NI ये आएगा मतलब F1 into N1 दिस वन F2 into N2 ये F3 into N3 ये सम अप कर दो वी विल गेट ESAL इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल लोड ठीक है मतलब देखो कोई व्हीकल कितना है लोड 80 है ठीक है स्टैंडर्ड लोड है तुम्हारा 80 कितना बार चल सकता है 100 ठीक है उससे ज्यादा वाला है कितना बार जाएगा 100 उससे कम वाला कितना बार जा सकता है 10,000 ठीक है अब हमको क्या करना है सबको स्टैंडर्डाइज कर देना है हम तो बोलेंगे कि इसका स्टैंडर्ड कितना रिपीटेटिव जा सकता है इसका स्टैंडर्ड कितना रिपीटेटिव जा सकता है देखो 80 का दिस इज इटसेल्फ इज अ स्टैंडर्ड व्हीकल ठीक है हम बोले थे कि यहाँ से बाईसाइकिल जा सकता है कितना बार 1000 टाइम तो बाईसाइकिल का जितना भी वैल्यू है उतना ही हम लोग यहाँ पे रिपीटेटिव कर दिया ठीक है अब ये वाला देखो ये 40 किलो न्यूटन कितना बार जा सकता है हेलो हेलो मैम देखो 40 किलो न्यूटन जा रहा था 10,000 टाइम्स बार ठीक है अब इसका इक्विवेलेंट 80 किलो न्यूटन कितना बार जा रहा है 625 टाइम्स कम जाना चाहिए ना वैसे देखो 160 किलो न्यूटन वाला लोड कितना बार जा रहा था 100 टाइम्स ठीक है अब इससे कम वाला 100 से ज्यादा जाएगा ना कम जाएगा इससे कम मतलब स्टैंडर्ड जो है मतलब 80 किलो न्यूटन जो है वो कितना बार जाना चाहिए इससे ज्यादा ना कम हम लोग क्या बोल रहे देखो 40 कितना बार जा रहा था 1000 बार जा रहा था ठीक है इसको हमको कन्वर्ट कर देना कितना है 80 में कन्वर्ट कर देना है ठीक है अगर इसको हम 80 में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना बार रिपीटेटिव कर सकता है 1000 से ज्यादा ना कम इतना टन या इतना किलो न्यूटन वाला लोड जा रहा है मतलब कितना नंबर ऑफ व्हीकल जा रहा है कम कम होवे राइट तो कितना आ रहा है देखो 625 ठीक है सेम 80 ये है स्टैंडर्ड ही है 80 वाला जा रहा है कितना 1000 टाइम्स जाएगा तो फिर से इसको फिर से स्टैंडर्ड कर देना मतलब क्या है ये वाला सेम रहेगा 1000 ही रहेगा देखो यहाँ पे 1000 ही है ओके अब ये वाला देखो 160 किलो न्यूटन वाला कितना बार जा रहा था 100 बार जा रहा था अब इसको स्टैंडर्ड कर देना है मतलब 80 में कन्वर्ट कर देना है तो कितना बार जाएगा इससे ज्यादा ना कम 160 वाला 100 टाइम्स जा सकता था तो 80 वाला क्या हो जाएगा ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगा ओके विच वाज योर 1600 तो अब टोटल इक्विवेलेंट हम लोग का कितना है इतना है टोटल इक्विवेलेंट रिपीटेशन ऑफ लोड कितना है इतना तो दिस प्लस दिस इज गिविंग अस दिस वन मतलब इन सब का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल लोड कितना है ये है ओके क्लियर इज इट क्लियर ओके तो लास्ट फैक्टर क्या था इन्वायरमेंटल फैक्टर तो टेम्परेचर की वजह से देखो ये सब होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर टेम्परेचर की वजह से मैम ब्रेक ओके ब्रेक एंड प्रेसिपिटेशन की वजह से भी ये फेलियर होता है ओके ओके देन अभी फर्स्ट लेक्चर का ब्रेक दे देते हैं हम लोग
এসো তাহলে তোমরা কটায় আসবে বলো তো? 11টা 10, 10 তো হয়ে গেল। 11টা 12টায় আসো। 20 হ্যাঁ 11টায় 12টায় কত আসো, ম্যাম? 11টা 12, 6 মিনিট পর, 5 মিনিটের পর। 15 ম্যাম, Okay, ma'am. Okay, ma'am. ঠিক আছে। 15। হুম।